ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਸਤਕ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ GST ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੁਨਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ GST हटाया जाए। कब तक जीरो GST नहीं होता जब तक हमारा आंदोलन चलेगा, वो भी गांधी मार्ग से। 2017 के पहले कोई नहीं टैक्स था, वैट नहीं था, कोई टैक्स नहीं था। बीजेपी एमपी लोग भी साइन किया और बीजेपी मिनिस्टर्स भी हम जो मिलने को गया वो भी मदद दे रहे, लेकिन वो गवर्नमेंट में है ना, वो नहीं साइन कर रहे। फाइनेंस मिनिस्टर का जो एक काउंसिल होता उसका चेयरमैन है मुंबई, वो कर्नाटक का मुख्यमंत्री है। हम उससे मिलने की भी बहुत बार कोशिश किया, वो समझाने के लिए बहुत बार कोशिश किया। हम लेटर्स लिखे, उसका अपॉइंटमेंट भी मांगे। मैं 8 दिन कर्नाटक में रह के उनका अपॉइंटमेंट के वेट किया, तो उनसे मिलने का भी मौका नहीं मिला। हैदराबाद तो हैंडलूम दिन ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਕਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਬੁਨਕਰ ਤੋਂ GST ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੁਨਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ GST ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ, MP ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਸਤਕ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ GST ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੁਨਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ GST ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MP ਨੇ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਡੂਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰੂੰ ਕੱਤ ਕੇ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰੀਆਂ ਖੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ GST ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲੂਮ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਨਕਰ ਡੇ, ਬੁਨਕਰ ਦਿਨ। ਬੁਨਕਰ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਰੂੰ ਕੱਤਦੇ ਨੇ, ਸੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਦੇਸੀ ਕੱਪੜਾ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਨਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੁਨਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ GST ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਭਾਸਕਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ एक और सज्जन ने। आपका नाम क्या है? आप तो हैंडलूम डे को फाउंडर मेंबर भी हो। हैंडलूम डे कब आता है? ये 7 अगस्त हैंडलूम डे हम ऑब्जर्व करता है। ये 2006 से हम हैंडलूम डे को 7 अगस्त में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और 9 years एफर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में उसको ऑफिशियल कर दिया। अभी सभी राज्यों में 7 अगस्त को हैंडलूम डे ऑफिशियली कर जा रहा है। 7 अगस्त को आप हैंडलूम डे का फाउंडर आपने किया, स्थापना आपने की, आपने ढूंढा कि फाउंडर कौन सा कैसा हो सकता है। आप सपोर्ट करते हो हैंडलूम की, तो अभी दिक्कत क्या आ रही है? आप मेंबर पार्लियामेंट के पास जा रहे हो, दिल्ली में घूम रहे हो और पूरे स्टेट में अलग अलग स्टेटों में जा रहे हो, दिक्कत क्या आ रही है? ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ये हैंडलूम का प्रोडक्ट्स का ऊपर कोई टैक्स नहीं था। सभी प्रधानमंत्री, गवर्नमेंट, सभी पार्टी और
हैंडलूम को रिस्पेक्ट करके इसको स्पेशल से देखा गया। 217 में ये गवर्नमेंट आने के बाद पहली बार भारत में हैंडलूम प्रोडक्ट्स का ऊपर टैक्स लगाया। इसको निकालने के लिए हम 217 से विनती पत्र दे रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं सुन रहे हैं और एक फैसला किया 2022 जनवरी 1 से 5% को 12% करने का भी ऑर्डर दिया, लेकिन पूरा देश में हम आंदोलन कर लिया और विविध राज्यों पे वो चीफ मिनिस्टर से हैंडलूम मिनिस्टर भी प्रधानमंत्री को फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखा है। उसके बाद वो गवर्नमेंट ने वो निर्णय को स्टेटस को में रखा। हमका जो डिमांड है पूरा उसका ऊपर 0 GST होना है। इसीलिए हम हैदराबाद से दिल्ली आया, पूरा राज्यों का MP को हम मिल रहे, विनती पत्र दे रहे और एक लेटर भी हम फैब्रिक में लिख रहे प्रधानमंत्री को, हैंडलूम फैब्रिक में लिख रहे। उसमें अभी तक 15 स्टेट से और 14 पॉलिटिकल पार्टी से 64 MPs का साइन कर दिया। हमारा टारगेट है अगस्त 7 तक 100 MPs का साइन लेके उसको प्राइम मिनिस्टर को भेजना है। इसका सपोर्ट बहुत मिल रहे और सिविल सोसाइटी सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा देश की जनता सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा पार्टी सपोर्ट, इंक्लूडिंग BJP आल्सो। BJP MPs आल्सो साइंड ऑन फैब्रिक to request the Modi to repeal the GST and हैंडलूम प्रोडक्ट्स। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट जो स्टेट की गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट कहती है कि GST जो लगाया है हमारी रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि स्टेट की रिकमेंडेशन से हमने GST लगाया है। ये दो कॉन्फ्लिक्ट है। नहीं, GST काउंसिल में हर एक राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर था। जो मेजॉरिटी स्टेट्स में BJP पावर में है, सो BJP अगर निर्णय लिया वो फाइनेंस मिनिस्टर भी सपोर्ट करते। अगर हमारा तेलंगाना स्टेट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने 0 GST काउंसिल ने विरोध किया निर्णय को और फाइनेंस मिनिस्टर एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर रोट ए लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो। तो गवर्नमेंट उनका साथ है, मेजॉरिटी मेंबर्स उनका साथ है। अगर इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो एक काउंसिल होता उसका चेयरमैन है बोम्मई, वो कर्नाटक का मुख्यमंत्री है। हम उससे मिलने की भी बहुत बार कोशिश किया, वो समझाने के लिए बहुत बार कोशिश किया। हम लेटर्स लिखे, उसका अपॉइंटमेंट भी मांगे। मैं 8 दिन कर्नाटक में रह के उनका अपॉइंटमेंट के वेट किया। क्यों बोले तो उन्हीं है जो GST का जो रिव्यू करने का जो फाइनेंस मिनिस्टर काउंसिल का प्रेसिडेंट उन्हीं है, उनसे मिलने का भी मौका नहीं मिला। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਕਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ है, सूबे कह रहे हैं कि केंद्र ने सानू रिकमेंडेशन भेजी है। भास्कर, कैसे देखते हो अभी एजिटेशन? आपने दिल्ली में आए हो, जगह जगह जा रहे हो मेंबर पर, जैसे आप साहब ने बोला कि 10 स्टेटों में 40 से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट के पास जा रहे हो, तो बात आपकी उनके समझ में आती है, उनके दिमाग में पड़ती है क्या? ये हमारा ये पूरा MP से मिला है ना, ये मिला है का उनका वोटर्स भी बहुत है, उनका जगह में रहने वाले भी ये बुनकर समाज बहुत है। इसी वजह से ये लोग भी हमको हम आपका आंदोलन का मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। सो आंदोलन आपका कैसा, अब आप सपोर्ट कर रहे हो हैंडलूम को, हैंडलूम की जो प्रॉब्लम्स है, जो दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं, उनको आप गवर्नमेंट के कान पर भेज रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट पे जाओ, स्टेट गवर्नमेंट जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। अभी तो आप पूरे दिन में घूम रहे हो, अभी कपिल सिब्बल के पास जा रहे हो, कल किसी और मेंबर पार्लियामेंट के जा रहे थे, अभी कोई कंक्लूजन निकला है क्या? या नहीं, मैं जनवरी 1 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से मिला है, एक आधा घंटा चर्चा भी हो गया। मैं तो अफसोस हो गया, उन्होंने बोल रहे इससे पहले भी वैट है ना बोल के बोल रहे। मैंने बोला नहीं 2017 के पहले कोई नहीं टैक्स था, वैट नहीं था, कोई टैक्स नहीं था। उन्हें अफसोस हो गया वो सुन के। उन्होंने क्या बोले, हम भी मदद करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होता ना वो हैंडलूम्स को, पावरलूम्स को कैसा सेपरेट करना, कैसा करना,
बोल के वो तो एक पॉजिटिव रिप्लाई तो दिया। वो और कुछ ऑफिसर्स भी से हम मुलाकात हो गया, उससे भी इसका बारे में डिस्कशन किया, वो भी वही बोल रहे। मैं इसको भी एक सूचना दिया, हमारा तेलंगाना में जो हैंडलूम है पूरा सर्वे करके जियो टैग डाले। मैंने रिकमेंड कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, पूरा देश पे वैसे जियो टैग डालो। और 2006 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का टाइम पे एक हैंडलूम मार्क स्कीम लाया। जो हैंडलूम मार्क स्कीम वो हथकरघा वालों को देना, जो हैंडलूम मार्क रहता है ना साड़ी का ऊपर नहीं तो कपड़े का ऊपर, उसको जीएसटी करना। जीएसटी इसका सिंपल है, सोल्यूशन तो सिंपल है। जियो टैग का बेनिफिट आपको क्या मिलता है? बुनकर को आप प्रोडक्ट बनाते हो, रुई लेते हो, उससे दरी बनाते हो, कुछ और वस्त्र बनाते हो, कपड़ा बनाते हो, जब ये जियो टैग आपको मिल जाए उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? जियो टैग से असली वीवर कौन है वो हम बता सकते, आइडेंटिफाई कर सकते। जो जीएसटी लगा रहे हैं उससे तो बुनकर का गिनती कम हो जाएगा, ऐसा भी आपके मन में डाउट है? नहीं 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 नहीं, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4th सेंसेक्स बोल रहे हैं 30 लाख का हैंडलूम से इंडिया में। वही सेंसस में बोला हमारा तेलंगाना में 11,000 है बोल के, लेकिन हमारा तेलंगाना में जियो टैग लूम से 20,000 कम दिखा रहे। वो 30 लाख है ना, वो कम दिखा रहे, इससे ज़्यादा रहता। अब वो जियो टैग से हम पता करें तो ज़्यादा होता, हमारा संख्या ज़्यादा होता। और एक चीज़ है, ये भारत देश में इंडिया में सिविल सोसाइटी का मदद और फार्मर को वीवर को रहता। हर एक आदमी ने अरे वीवर को सपोर्ट करने के लिए वो हथकरघा का कपड़ा खरीद के लेने की सोचते। लेकिन क्या है, वो बड़ा बड़ा शोरूम में वो पावरलूम भी ला के हैंडलूम बोल के बेच सकते। अगर जियो टैग करके हैंडलूम मार्क वो हैंडलूम वीवर को दे तो ये पक्का हो जाएगा। वो कंज्यूमर को भी वो कन्फ्यूज नहीं होता, पक्का होता, उसका भी अच्छा वेजेस मिलेगा, डिमांड मिलेगा। एक 100 करोड़ का हैंडलूम बिजनेस, हैंडलूम का प्रोडक्शन है तो 10,000 करोड़ का बिजनेस वो पावरलूम का बिजनेस इन द नेम ऑफ हैंडलूम में हो रहे, वो भी खटड़ी कर सकते हैं। कितना होप है आपको? आप पूरे देश में घूम रहे हो और 7 अगस्त को हैंडलूम डे भी मना रहे हो, कितना होप भास्कर और नेता लेकर चलता है? हम तो आशा जीवी है। मैंने मानता हूँ ये गवर्नमेंट एंड ये प्राइम मिनिस्टर, ये पार्टी इज नॉट द परमानेंट। और सुनेगा, इन्हें सुनेगा तो अगले कौन आएगा उन्हें सुनेगा। अगर बीजेपी में भी और कोई सुनेगा, हम आशावादी है। एक बात बताना, मेंबर पार्लियामेंट तो बीजेपी के हैं, उन्होंने भी साइन किया आपके रिकमेंडेशन में भी, हाँ आपकी बात ठीक है, जीएसटी बुनकर पे हटाना चाहिए। हाँ, एमपीस लोग भी, बीजेपी एमपीस लोग भी साइन किया और बीजेपी मिनिस्टर्स भी हम जो मिलने को गया वो भी मदद दे रहे। लेकिन वो गवर्नमेंट में है ना, वो नहीं साइन कर रहे, बट एमपी लोग साइन कर रहे हैं। उसका पार्टी का भी हमारा को मदद है। लेकिन जो भी हो वो कब तक जीरो जीएसटी नहीं होता जब तक हमारा आंदोलन चलेगा, वो भी गांधी मार्ग से। जो गांधी जी ने स्वातंत्र उद्यम में वो साल्ट सत्याग्रह किया और ये चरखा पकड़ के वो नॉन वायलेंस मूवमेंट किया, वो ये तरफ से जाते। हर एक गवर्नमेंट वो साल्ट का ऊपर, वो हैंडलूम हथकरघा का प्रोडक्ट्स का ऊपर कभी अभी तक किसी गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं डाला, वो रेस्पेक्ट किया। वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में वो हैंडलूम प्रोडक्ट्स का मेजर रोल था। सो भास्कर और नथा ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬੁਨਕਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਕਣ। ਔਰ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਦਿਓ।